Kuldeep has also joined. Hi, good evening, sir. Good evening, sir. How are you? I'm good. What about you? Fantastic. See, we are going to start the class. We have got uh, two persons in our class और धीरे धीरे जुड़ जाएंगे सभी और आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ठीक है एज इट That's great. yesterday yesterday it was first day so I did not record it and today it is being recorded for the purpose let's suppose you want to revise your class in a free time you can open it and you can revise it right so we will record all the classes so I want you to open your mic and if you wish you can open your camera if you wish that is completely up to your wish right. Pushpendra sir, right now I'm having my day Mhm. off. So Oh, after you, 5-10 minutes, I will open my mic. mhm. Okay, okay, not an issue. You have your dinner. Okay, shall we start, Patricia? Yes, sir. हाँ तो सबसे पहले तो हम सेल की ही बात कर लेते हैं अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या हम शुरू करें तो उसके लिए स्टेटमेंट होती है शैल वी स्टार्ट क्या हम शुरू करें शैल वी ठीक है Start. क्या क्या हम खेलें शैल वी प्ले एक तरीके से ना ये टू टेक कंसेंट होता है कंसेंट का मतलब है किसी व्यक्ति से हामी हामी भरना मतलब किसी की स्वीकृति लेना कि चलो शुरू करते हैं है ना तो उसके लिए हम लोग सेंटेंस हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं शैल वी स्टार्ट क्या बोलते हैं Shall we start? हाँ शैल वी स्टार्ट है ना कई बार होता है कि हम लोग कहते हैं कि चलें क्या तो चलें क्या तो केवल हम खाली शैल वी बोल देते हैं और हाथ से इशारा कर देते हैं ठीक है शैल वी तो इस तरीके से भी हम लोग जो है शैल वी खाली बोल करके भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि चलें क्या है ना अ, तो चलिए तो कल की क्लास थी हमारी एक तरीके से इंट्रोडक्शन की क्लास थी ठीक है और अभी हमारे साथ एक नए कैंडिडेट और जुड़े हैं उनका नाम है अरीबा अरीबा नाउ यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन in a brief manner introduce yourself Ariba I can't hear you see this is spoken English class तो इसमें कॉन्वर्सेशन तो होगा ही होगा है ना बिना बोले तो हम बोलना नहीं सीख सकते स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग तो बोलने से ही बोलना आता है आपको जो भी लगता है दो चार बातें अपने बारे में बताना वो आप बता सकते हैं ठीक पर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दो है ना इन इंग्लिश सो दैट अपार गुप्ता अपार गुप्ता बेटा चलिए प्रत्युषा आप थोड़ा बोलो बेटा कंटिन्यू Shall I introduce myself? हाँ लेकिन आपका बड़ा नॉइजी है बैकग्राउंड ऐसा क्यों हो रहा है There is nobody here, by the way. ओके ओके so you can continue with your introduction and after introduction how was your experience of yesterday's class that has to be shared with everyone right
Okay. हाँ, Shall I start? आवाज कम करो भाई अपनी, कभी आपकी बहुत ही मतलब हार्श आवाज आ रही है, वॉल्यूम कम कर लो फोन की। चलिए प्लीज कंटिन्यू। Okay. So, let me introduce myself. I am Patricia from class 11, Government International School. Well, I live in Pankakera, Meerut, Kent, and मतलब माइक बहुत पास है आपका, थोड़ा दूर करो, आवाज तेज आ रही कानों में। there are 5 members in my family, and my हाँ father's name is Pushpendra Singh. He is a teacher and हाँ also a vice principal in Government International School. Well, my mother's हाँ name is Mrs. Manda Shua. She is a हाँ housemaker. We हाँ are 3 siblings, and I'm the eldest one. And my younger हाँ sister's name is Ishita. She is हाँ a ninth grader. And my हाँ younger brother's name is Nirvan. He is a second grader. Well, my hobbies are to sing, dance, and write. Well, and I have the dream to become a doctor. That's all about my short life. Thank you for listening with so patience. हाँ। Now it's Adiba's turn. Adiba, you introduce yourself, right? You can introduce you in any language. You can be a bilingual as well, and you can be, I mean, you can speak in English as well. माइक ओपन कर लो बेटा और इंट्रोडक्शन दो अपना। सी इट इज योर फर्स्ट डे, आई नो दैट, बट इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना। आप जैसे भी मतलब हिंदी, इंग्लिश, इन एनी लैंग्वेज। ये तो गायब ही हो गए, बोथ ऑफ देम। पुष्पेंद्र भाई मेरी एक हाँ फ्रेंड है, हाँ हाँ सोनाक्षी, मैंने उसको बोला था तो वो भी बोल रही थी कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा टाइमिंग का इसको कंसर्न आ रहा था, क्योंकि ये वक्त खाना क्या? बनाने वगैरह का होता है ना उसका। नहीं वो तो उसमें आप हेडफोन लगा लो ना, आई मीन यू कीप डूइंग योर वर्क, है ना। कान में हेडफोन लगा लो, नॉट एन इशू, कोई इतना बड़ा बिग डील नहीं है, मैं ठीक है। बात करता बिकॉज हूँ ये, उससे। हाँ, लिसनिंग से होती हैं चीजें, और जब हम लिसनिंग करते हैं तो चीजें हो जाती हैं, ठीक। आई होप यू हैव फिनिश्ड योर डिनर। अबाउट टू फिनिश। ओके ओके, so you are doing cooking by yourself over there? No, actually I'm living in a PG, so they are providing. Today I was Okay, late, little okay. bit late. Actually, my timing is 8 Mm, or 8:30. In between 8 or 8:30, I used to my mm, dinner. I have my dinner, but due to mm, some my personal work today, mm. I was late, little bit. Okay, you got little bit side. Yeah. Okay, चलिए तो आज तो काफी लोग कम हैं, लेकिन शुरू करते हैं क्योंकि हमें तो स्टार्ट करना ही है ना, वी हैव टू कंटिन्यू, ठीक है। तो कल का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ था, ठीक है। और Introduction plus इंट्रोडक्शन में, हाँ, थोड़ा सा मतलब, briefly. हाँ, Let's वो क्या, हाँ, लेट का थोड़ा सा हुआ था, हाँ। तो कल let me जब or आप let चले us. गए थे, हाँ, तो जब आप कल चले गए थे तो दो तीन चीजें और बताई थी मैंने। जैसे कि जब हम क्लास खत्म करते हैं या कोई भी काम खत्म करते हैं तो उस समय बोलते हैं हम लेट अस कॉल इट अ डे, क्या बोलते हैं? Let us call it a day. हाँ, इसका मतलब होता है आज बस इतना ही, Okay, let us लेट अस call कॉल इट अ डे, कॉल इट let us call it a day. अ डे। Okay. हाँ, लेट अस को जोड़ देंगे तो लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है। Okay. तो आज बस इतना ही, आज बस इतना ही। Pratisha, what happened to your friend? She did not introduce herself when she left the class. She's here. She's here. She can't reconnect it. Huh? She can't reconnect the class.
वो सेम लिंक पे जाना है, वी आर हियर, इट्स नॉट एन इशू, क्लास इज ऑन। चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, है ना, हार्डली मैटर। तो आज का जो सेशन है ना कुलदीप, Yeah. उसमें इंटरएक्टिव सेशन है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कल हमने इंट्रोडक्शन में 4-5 चीजें बताई थी, जैसे नेम बताना है, एज बताना है, क्लास बतानी है, स्कूल बताना है, फादर का नाम बताना है, फादर का, उसका फिर आपको ऑक्यूपेशन बताना है, मदर का नाम बताना है, उसको ऑक्यूपेशन बताना है, उसके बाद फिर आपने बताना है अपना एम्बिशन, उसके बाद बताना हॉबीज। ये सारी चीजें अब आपको क्या करना है कि एक साथ ना बता करके एक एक करके पूछनी है एक दूसरे से। जैसे कि अब हम सबसे पहले पूछेंगे नाम, क्या बोलेंगे? नाम। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना। उसके बाद फिर एज पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे कि इन विच क्लास डू यू स्टडी, फिर पूछेंगे इन विच स्कूल डू यू स्टडी, फिर पूछेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम, फिर पूछेंगे व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट डज योर मदर डू। एक्चुअली ना, स्पीकिंग इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, Right. एंड इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चनिंग। Mm-hmm. ठीक है, बताना तो आना ही चाहिए लेकिन पूछना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो हम व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी हॉबी क्या है ना। और दो चार चीजें हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें हम वन बाय वन, मतलब एक थोड़ा सा, मतलब इंटरेक्टिव सेशन रखें इसमें। Okay. और इंटरेक्टिव सेशन में जो है हम लोग पूछ सकते हैं एक दूसरे से। आई आई होप, हम क्लास में तो आप और मैं ही हैं बस सिर्फ, है ना। Yes. तो चलिए, तो आप मुझसे पूछिए वो सारे सवाल, देन आई विल आंसर यू, एंड देन आई विल आस्क यू एंड यू विल आंसर माय क्वेश्चंस, ठीक है। और Okay. ये एक बेसिक, हाँ, बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग Okay. अपना हाँ, एक चीज और बता दूंगा थोड़ा सा, कि एक वर्ड है हेलो। क्या वर्ड है? Hello. हेलो। हेलो, हाँ, इसको हम ना आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? Ice breaking expression. What is it? हाँ, हाँ, आई एम कमिंग ऑन दैट। आइस ब्रेकिंग का मतलब देखो, अंग्रेजी में शुरू करने को ब्रेक द आइस भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मैंने बोला कि भाई आजकल की क्लास में बोलते हैं भाई कौन बोलेगा पहले, तो बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं हु विल स्पीक फर्स्ट, लेकिन वो नहीं है, हम बोलते हैं कि हु विल ब्रेक द आइस, ठीक है। Okay. हु विल ब्रेक द आइस, है ना। यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना भी होता है। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना. हाँ, तो मैं बोलूंगा जी, मैं बोलूंगा पहले, तो मैं ये कह सकता हूँ, ओके, आई ब्रेक द आइस टुडे। तो आज सबसे पहले मैं बोलूंगा। ये एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया है, ये कॉर्पोरेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो नहीं, ये बड़ा, ये I बड़ा, have heard this many times, but I हम्म, don't know what the exactly meaning of it. हाँ, Now हाँ, today I अब, come to know about that ice breaking. हाँ, So हाँ, actually I have seen itinerary when I was used to see हम्म, that itinerary of my events. There must be हम्म, one line over there written over there, the ice breaking session. So I was thinking, what is this हम्म, ice breaking session? Now I come to हम्म, know that. अब बहुत Right. सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yep. तो इसको हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था कि आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा था कि आपको कि आइस ब्रेकिंग का ये है कि शुरुआत करना होता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाई कौन कौन बोलेगा पहले, तो मेरे लिए सवाल ये होगा, हु विल ब्रेक द आइस टुडे ना। तो लेट्स सपोज आप बोलते हैं कि जी मैं बोलूंगा, तो आप बोलेंगे ओके, आई एम गोइंग टू ब्रेक द आइस टुडे, ठीक है। अब मैं I'm going to सेशन break स्टार्ट कर the रहा हूँ। ice today. Okay. हाँ, तो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशंस नॉर्मली जो हम समझते हैं, जैसे हेलो हाय होते हैं। क्या होता है? हाय हेलो। लेट्स सपोज आप ना किसी किसी अनजान आदमी के सामने बैठे हो या साथ बैठे हो, या तो नॉर्मली फोन पे भी हम बात करते हैं किसी से, तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा जान पहचान वाला है या कोई अननोन व्यक्ति है। तो पहला हमारा शब्द क्या होता है? हेलो। Hello. तो हाँ जी, तो ग्राहम बेल ने फोन बनाया था, आप सबको पता है, हम सबको पता है।
तो ग्राहम बेल ने जब पहली बार फोन इन्वेंट करने के बाद पहली बार अपनी वाइफ को फोन मिलाया, तो उसने शब्द बोला हेलो, ठीक है। और जब उसने हेलो बोला तो उसके बाद अमेरिका में जो डिक्शनरी बनी, सॉरी व्हाट वी कॉल इट, जिसमें फोन नंबर होता है, डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी। डायरेक्ट हाँ, तो टेलीफोन डायरेक्टरी बनी, तो उसमें ये लिखा हुआ था ऊपर कि व्हेन यू पिक द फोन आंसर विद हेलो। तो जैसे ही आप फोन उठाते हो तो सीधे पहला जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है, एंड दैट इज हेलो, दैट इज हेलो। हाँ हेलो। तो ये एक आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन है, और हेलो का जवाब हम हेलो से भी दे सकते हैं, हाय से भी दे सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीजें जो हेलो जो है वो उसका रिस्पॉन्स हाय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और हाय भी एक आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है नहीं कि आपने हेलो ही बोलना है, आप कह सकते हो हाय, ठीक है। तो चाहे हाय बोलो चाहे हेलो हेलो बोलो, दोनों आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन है, ठीक है। ओके। जब आप सबसे पहले शुरुआत जो होती है इंग्लिश की, वो इसके भी कुछ बातचीत करने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो सबसे पहले इनिशिएटिव हमें खुद ही लेना पड़ता है। अगर हम किसी सामने वाले के पास जाएं, ठीक है, तो राइट। सबसे पहले हेलो बोलेंगे, और हेलो बोलने के बाद देखो, जाते ही हम नाम नहीं पूछना शुरू कर देते। ये हमारा थोड़ा सा गलत फहमी है। हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो बोलेंगे, बोलो हेलो बोलो, फिर बोलो व्हाट इज योर नेम। तो ये बड़ा ऑकवर्ड है कि आप किसी को जानते नहीं हो और अब सीधा जाकर के सवाल दाग दिया कि तुम्हारा नाम क्या है। होता यह है कि जैसे ही हाय हेलो हाय बोलो, उसके बाद अपना नाम बताओ, राइट। ठीक है। तो जैसे बोले हेलो, माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह, एंड व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से बोलना होता है। ये एक अंग्रेजी में सभ्यता है कि सबसे पहले आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर आप अपना नाम बताएंगे, और अपना नाम बताने के बाद फिर सामने वाले का नाम पूछेंगे, ठीक है। इट कम्स इन मैनर्स, ठीक है। तो हमेशा हम जब हाथ बढ़ाते हैं, हम जब भी हाथ बढ़ाते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं कि नहीं बताते हैं? ये एक राइट। प्रोटोकॉल है। व्हेनेवर यू शेक हैंड, यू ऑलवेज टेल योर नेम, ठीक है। और फिर हम सामने वाले से उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, कि आपका क्या नाम है, ठीक है। इज दैट क्लियर? राइट। राइट। और फिर हम बोलते हैं एक एक्सप्रेशन, नाइस टू मीट यू, राइट। ठीक है। नाइस टू मीट नाइस यू टू मीट यू। का जवाब, हाँ, नाइस सबसे पहले यही बोला जाता है, हाय आई एम पुष्पेंद्र, और फिर आप बोलेंगे, है ना। होता यह है अंग्रेजी में दरअसल कि जब आप अपना नाम बताते हो तो सामने वाले से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अपना नाम बता देता है, राइट। ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हाय आई एम पुष्पेंद्र, अब आप उधर से बोलोगे। हाय। हाय, हाँ आई एम देखो, दो कुलदीप। चीज, हाँ देखो, बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने हाय बोल दिया गलती से तो आप हेलो बोल दो, और अगर मैंने हेलो बोल दिया तो आप हाय हाय बोल दो, ये है। तो अब मैं चलो फिर दोबारा से बोलता हूँ, हेलो माय नेम इज पुष्पेंद्र। हाय पुष्पेंद्र, माय नेम इज कुलदीप, या माय वेरी नेम इज गुड। कुलदीप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कुलदीप बोल देते हैं आज के डेट ओके। में। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में आता था, हेलो दिस इज अमिताभ बच्चन। कुछ लोगों को लगता है कि दिस नहीं बोल सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन आजकल अपने आप को, हाँ, आजकल अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। And है ना। मैं sometimes I have seen persons using myself. Is it correct or हम्म, wrong? हाँ, अभी आता हूँ, उस पर एक डिबेट है। एक्चुअली माई सेल्फ इज नॉट करेक्ट थिंग, ठीक है। माई Okay. सेल्फ जो है ना, पॉजेसिव केस है। अ, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, जैसे आई का माई, Hmm. ठीक है। तो ये पॉजेसिव केस है। पोजेशन आता, तो पोजेशन को हम एज ए सब्जेक्ट नहीं रख सकते ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। Okay. जैसे कि आई 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 वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, तो ये मैं खुद करता हूँ, है ना। तो माई सेल्फ कैन नॉट बी यूज एज ए सब्जेक्ट, ग्रामर का तरीका बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये एक Okay. स्लैंग बन चुका है, ये एक स्लैंग बन चुका है। अब कोई लोग, अब हम ना कहीं भी जाएंगे, कोई अगर माई सेल्फ बोल रहा है तो उसे गलत बताना नहीं होता है। उसका रीजन है,
रीजन ये है कि इट इज बीइंग यूज्ड एज ए स्लैंग। अब सवाल आता है कि स्लैंग क्या होता है। स्लैंग होता है कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ स्लैंग रूप। क्या है? भाषा का भाषा का बिगड़ा हुआ बिगड़ा रूप हुआ रूप। स्लैंग है, SLANG। अब देखो बहुत सारे अंग्रेज जो है ना, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग बता रहा हूँ, आप आर्मी स्कूल से पढ़े हो, आर्मी स्कूल से पढ़ने के बाद इंग्लिश मीडियम रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी इंग्लिश की मूवीज ऐसी होती हैं। मैं तो टीचर भी हूँ इंग्लिश का, तो इवन देन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते। उसका कारण है स्लैंग। उसका क्या कारण है? स्लैंग। स्लैंग है। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं हिंदी में जो हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, हमारे व्याकरण में उनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। लेट्स सपोज किसी अंग्रेज ने हिंदी सीखी और उसने पूछा कि भाई तुम पुष्पेंद्र हो, मैंने कह दिया हम राइट। है। अब वो ये चकरा जाएगा, बोले हम कहाँ से आ गया यार, ये तो हम कहीं पढ़ा है ना मैंने। लेकिन हम इतना पॉपुलर है कि अगर गांव की तरफ कहीं जाओगे तो उससे पूछो भाई समझ में आ गया, बोला हाँ हम। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भाषा के बारे में तो तुमने बहुत पढ़ा हो बिन्नी मैम से। वो ये कहती थी कि भाई कोस कोस पे बदले वाणी, है ना, कुछ ऐसा भी पढ़ाया था उन्होंने, याद होगा तुम्हें, है ना। और चार कोस पे भाषा बदले, इस पे बदले वाणी, कुछ ऐसा था, कुछ मुझे याद पूरा प्रॉपर याद नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में ही 22 तो भाषाएं हैं, और क्षेत्रीय बोलियों तो का तो गिनती नहीं है कितनी है। राइट। इसी प्रकार इंग्लिश में भी स्लैंग्स होते हैं। इंग्लिश में भी स्लैंग्स होते हैं, और वो स्लैंग्स को आसानी से, हाँ हाँ, तो हम लोग जब लोकल लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके बीच में जो वर्ड प्रचलित होते हैं, है ना, तो उनको हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे हैं जैसे ये वर्ड यूज करते हैं कि हम तो जैन जी हैं, जैन जी हैं। हमारे टाइम पे जैन जी पैन जी तो होता नहीं था, है ना। तो ये, हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब कम्युनिटी के बीच में कोई वर्ड फेमस होते हैं, कुछ किसी गांव के बीच में, कोई सिटी के बीच, तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है। लेकिन हाँ, मतलब जो कॉमन चीजें हैं वो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, जो सब जगह एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कहीं स्लैंग आ जाता है तो स्लैंग तो भैया आपको वहां जाके ही पता चलेगा ना। आई कांट टीच यू ईच एंड एवरी स्लैंग, है ना। तो स्लैंग जो पॉपुलर स्लैंग्स है, जब स्लैंग्स की बात आएगी वी विल डिस्कस अबाउट इट। जैसे कि अभी हम बोलते हैं आई डोंट नो, ठीक है, अंग्रेज बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, है ना। आजकल तो और शॉर्ट हो गया आईडी के, आईडी के। जब हमें पता ही नहीं है भाई ये स्लैंग क्या है, तो हाउ कैन वी यूज दैट। तो अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हमारा हमारा तरीका ये है अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने का। पहले हाय हेलो यानी कि आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद में फिर आप अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओगे, ठीक है, उसके बाद मैं अपना नाम बताऊंगा, फिर बोलेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का जवाब होगा नाइस टू मीट यू टू। क्या होगा? Nice to meet you too. हाँ, Or अगर instead of that, we can use that same here. सेम हियर भी कह सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू कह सकते हैं, प्लीज टू Glad मीट to यू meet कह you. सकते हैं, है ना, प्लीज टू मीट यू कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, हेलो, माय नेम इज पुष्पेंद्र। Hi Pushpendra, this is Kuldeep. Nice to meet you. ग्लैड टू मीट यू टू। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक ये आइस ब्रेकिंग सेशन कंप्लीट हो गया है। और जब भी आप किसी से मिलेंगे स्टार्टिंग में, तो इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स वापस आ चुके हैं, रन छोड़ दास चार्टर्ड सब वापस आ गए हैं, है ना। Right. तो हाँ, तो इशिका, आई थिंक यू आर ऑनलाइन, यू कैन ओपन योर माइक। और मैंने बताया कि सबसे पहले आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन बोलना है, एंड दैट इज हाय हेलो। और उसके बाद आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन के बाद आपको खुद का अपना नाम बताना होता है इंग्लिश में। सामने वाले से सवाल नहीं दागना होता कि हे व्हाट इज योर नेम। इट्स वेरी रूड, इट्स वेरी आई मीन नॉट एथिकल। तो इसी का ओपन योर माइक एंड स्टार्ट हैविंग
आइस ब्रेकिंग सेशन विद कुलदीप, ठीक है? आर यू देयर? यस प्लीज। हेलो बोला। Hello. हेलो। नाम ना सर 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 वेट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। हेलो के बाद अपना नाम बताना बेटे। Hello, my name is Ishika. हाय इशिका, दिस साइड कुलदीप, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. Well, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना ही चाहिए था अभी तो। अभी परी 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 एंड कुलदीप। Hello, I am Pratyusha. हाय प्रत्यूषा, दिस इज कुलदीप, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. नाउ अदीबा, कैन यू ओपन योर माइक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द सेम वे? आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी चल रही है अभी, सबको एक दूसरे से बोलना है, ठीक है? परी अदीबा से बात करो। Hello, Ariba. hello. ना, नाम बताओ परी आपको अदीबा अपना नाम बताना है, ठीक है? Hello, my name is Ariba. हाँ ऐसे नहीं बोलना, दिस इज बोलना है, ठीक है? Okay, sir. हाँ परी, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हेलो दिस इज परी, या हेलो आई एम परी, और उधर से जवाब आएगा हाय आई एम अरीबा, ठीक है? और फिर नाइस टू मीट यू, फिर नाइस टू मीट यू टू। ये आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन है, ये ऐसे ही चलेगा हमेशा। जब भी आप बात करेंगे तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। अभी एक्टिविटी एक बार फिर से करो। परी योर टर्न। Hello. Hello, Ariba. I am Pratyusha. Hi, I am Ariba. Nice to अरीबा, meet you. हाँ परी आपने वही बात कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। अरे उसको नाम बोलने दो ना। आप बोलो हेलो, बोलो, केवल हेलो बोल के अपना नाम बताओ। हाय हेलो। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स की, कि हम स्ट्रेंजर से कैसे बात करते हैं, ठीक है? जिनको हम जानते हैं उनके लिए तो ये है ही नहीं एक्टिविटी, वो तो आते ही थप्पड़ लगाते हैं, बोले कैसी है तू, समझ में? तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ स्ट्रेंजर, ठीक है? तो दोबारा Yes. से करो ये एक्टिविटी। हाँ Hello, I am Pratyusha. अरीबा बोलो बेटा। अरीबा, आई थिंक योर माइक इज नॉट वर्किंग। चलो इशिका से बात करो प्रतीक्षा, यू स्पीक टू इशिका, ठीक है? Hello, I am Pratyusha. Hi, Pratyusha. Nice to meet you. Nice to meet you too. नहीं नहीं नहीं, इशिका आपको भी तो नाम बताना है। अगर वो अपना नाम बता रही है तो आपको नाम बताना है बेटा, है ना? Okay. हेलो प्रतीक्षा, दिस इज इशिका, नाइस टू मीट यू, ऐसे बोलना। Hello, hello, I am Pratyusha. Hi, Pratyusha. This is Ishika. Nice to meet you. Nice to meet you too. ठीक है? अब कुलदीप, यस सर। इशिका के साथ जो है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। हाय इशिका, माय नेम इज कुलदीप। सॉरी 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 सॉरी। हाय इशिका, कोई बात दिस इज नहीं। कुलदीप। इशिका रिस्पॉन्ड करो। हेलो। Hi, सॉरी, sir. एक्चुअली आई Hi, हैव यूज्ड this is Ishika. Nice to meet you. एक्चुअली मेरे को इशिका नहीं बोलना था। हेलो, दिस इज कुलदीप। हाँ ठीक है, फिर से बोलो। हाय, दिस इज कुलदीप। Hi, Kuldeep. Hi, sir. Nice to meet. Hi, sir. I am Ishika. हाय Nice कुलदीप to meet सर, you. यू से हाय कुलदीप सर। नो, हियर वी आर colleagues, हाँ so you अपना, can use. हाँ कुलदीप, हाँ नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पहले तो उन्होंने हेलो बोल दिया, अभी तो स्ट्रेंजर की बात हो रही है। नाम उन्होंने बताया, नाम आपको अपना बताना। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर ना। अभी जब हम कुलीग की बात करेंगे, कुलीग की बात करेंगे तो उस पर भी आएंगे, ठीक है? पहले अभी तो स्ट्रेंजर का चल रहा है एक्टिविटी, ठीक है? Okay. ये वी
ऑल आर अननोन टू ईच अदर, ठीक है। तो हम पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जब हम फेमिलियर हो जाएंगे तो उसमें कैसे करना है वो अलग है, ठीक है। Okay, sir. हम्म। Hello, this is Kuldeep. Hi, Kuldeep, sir. This is Ishika. Nice to meet you. Glad to meet you too. वेरी गुड, क्लैप फॉर एवरीवन, सबको क्लैप करना है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। क्या हो गया? Ice breaking. I taking activity. कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति चुप रह जाता है, बोलता नहीं है, तो चुप रहने को हम बोलते हैं मम, MUM। क्या बोलते हैं? MUM. Mum. हाँ, डोंट बी मम, से समथिंग। क्या बोलेंगे? Don't be mum. Say something. वाई आर यू मम? भाई चुप क्यों हो तुम? वाई आर यू मम? समथिंग। Why you are mum? Say वाई something. आर यू? वाई आर यू? Yes. Why are you mum? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम सवाल पूछते हैं तो अगर WH वर्ड आ रहा है ना, WH वर्ड, तो WH वर्ड के बाद हमेशा WH वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वाई अगर आ गया तो उसके साथ हमें फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगाने हैं। अगर हमने बोल दिया वाई यू आर मम, तो वो सवाल नहीं देंगे, वो अफर्मेटिव में से कन्वर्ट हो गया। लेकिन नॉर्मली होता यही है मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली होता यही है, लोग ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, वो कहेंगे वाई यू आर मम, ठीक है, ठीक है। Why are you mum? तो हाँ, देखो होता क्या है, हिंदी में भी अगर हम देखें तो जो स्पीकिंग है उसके वहाँ कोई रूल काम नहीं करते। मैं बताता हूँ कैसे। कुछ भी बोलो यार, सब चलता है, एवरीथिंग गोज। रीजन क्या है? अगर किसी से पूछना हो क्या तुम जा रहे हो, क्या हमने आज तक कभी जिंदगी में पूछा है क्या तुम जा रहे हो? हम सीधा बोलते हैं जा रहे क्या। Hmm. Right. मैं क्या कह रहा था? व्हाट वाज आई टेलिंग? You were explaining about in Hindi also we use so much grammatical mistakes. हाँ हाँ हाँ। तो ग्रामर जो है वो स्पीकिंग में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है ना। एवरीथिंग गोज। द मेन मोटो ऑफ स्पीकिंग इज टू कन्वे योर मैसेज टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो Yep. लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। जब आपको ग्रामर की नॉलेज होती है ना, दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट ना। Right. नॉलेज, बेसिक थिंग क्या है कि नॉलेज मेक्स यू कॉन्फिडेंट। आपको Yes. जो कॉन्फिडेंस आता है दैट कम्स विद नॉलेज, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी बता रहा कहा हूँ मैं जाता आपको है। कॉन्फिडेंस का। Yep. Please. एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कॉन्फिडेंस का। वो है नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस का, नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन। क्या है? Knowledge plus Knowledge। implementation. हाँ, तो एक पहला तो नॉलेज है और फिर हमने उस नॉलेज का प्रैक्टिस कर रखा है। मैं भी ना लाइन पे हूँ, स्पीकर चलता रहेगा बट मैं स्क्रीन से थोड़ा हट रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज प्लस Implementation. नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन। मंजू मेरा बैग ला देना एक Equals बार। to कॉन्फिडेंस। confidence. C इज इक्वल टू K प्लस P। Right. क्या? C equals to K plus P, K plus I. C इज इक्वल टू K प्लस P और C इज इक्वल टू K प्लस I। अरे अपार अंदर आ जाओ। C इज इक्वल टू K प्लस P और C इज इक्वल टू K K प्लस plus I. I। Knowledge बताओ plus भैया, implementation. सक्सेस का फॉर्मूला बताइए सब लोग। It's a formula of confidence. यस एग्जैक्टली, फॉर्मूला ऑफ कॉन्फिडेंस इज K प्लस P, नॉलेज प्लस
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और दूसरा फॉर्मूला है K नॉलेज प्लस आई, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली। देखो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें नॉलेज है प्लस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो भाई अब कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा, है ना। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर है ना, दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर है। विराट कोहली दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस कब आता है बैटिंग में? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, अभी इस पे भी आएंगे। वेट ए सेकंड Only गाइस, man's perfect. मैं भी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। विल कम ऑन दैट ऑल्सो। एक बहुत अच्छा किस्सा है उससे रिलेटेड मेरा। बेटा ये पूरा भरना है आपको, सब्जेक्ट वगैरह भरना है सारे, ठीक है। हाँ, ये 12th कर देना, 12th में ना ऐसे कट के 12th कर देना। यहाँ आपके साइन, फादर के साइन होंगे, ठीक है। ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पेरेंट के साइन, आपके साइन, ठीक है। ये सारा भर देना, यहाँ 12th कर देना, ठीक है। उसके साथ तीनों आधार कार्ड लगेंगे। आधार कार्ड पे जो मम्मी का आधार कार्ड है, मम्मी के साइन होकर टेस्ट होगा। पापा का आधार कार्ड है तो उस पर टेस्ट होगा। आपका आप कैसे होगा? पापा ने वो लिखा रखा है जैसे स्कूल के लिए तो फॉर स्कूल ओनली, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है 3-3 फोटो। आधार कार्ड तो सिंगल सिंगल लगेगा ना? हाँ, सिंगल सिंगल 3 आधार कार्ड की कॉपी लगेंगे, 3-3 फोटो लगेंगे, ठीक है। ये करवा के ला दो आप मुझे। अभी ना हाँ अभी ले आओ, ठीक है, कल चला जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर और ये छोड़ देना जो नहीं आपका कैटेगरी है, सब जो पता है आपको वो सब भर देना, ठीक है। गाइस आई एम बैक। तो what was I telling you? I was telling you the formula of confidence. What was I telling you? Knowledge Formula- practice equals to confidence, हाँ, and confidence confidence, equals to knowledge plus implementation. है ना। हाँ, तो आप चाहे कितना भी ज्ञान आपके पास हो, अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर ज्ञानी कहाँ से हो जाएंगे? Yes. For example, you have completed your MBBS, but even then you are not doing operations, Practicing. है ना। You are not doing operations, so how will you get practical knowledge, right? मैं एक बात और बता दूं कि you cannot learn to drive a car by reading only manuals, है ना। तो you need So to, that you have to you drive need, the car. exactly, यानी कि you have to take the action, you have to take the Yes. action. Action. If you are, if you are not taking action, if you are not taking initiative, if you are not thinking that I am capable of speaking English, so that is must। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। देखो मैं आपको बता दूं, मैं कंटेंट भी लेके चल रहा हूँ और साथ में उस कंटेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए हमारी क्लास में रिजल्ट इसीलिए आता है क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन की बात ज्यादा करते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको जो पहले से नॉलेज है उसको भी आप सिंक करें। सिंक का मतलब है उसका तालमेल बैठाएं अपने कन्वर्सेशन में, ठीक है। और कभी भी कोई बेस्ट तो होता ही नहीं है ना। Right. वी कैन नॉट बी द बेस्ट, है ना। हम नेक्स्ट टू बेस्ट तो हो सकते हैं, मतलब बेस्ट के करीब जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट हो नहीं सकते। बिकॉज बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या बोलेंगे? The biggest room. रूम इन दिस वर्ल्ड, रूम ROOM, रूम का मतलब होता है जगह। आपने क्रिकेट में सुना होगा, कमेंट्री करते हैं, बोला देखिए विराट कोहली ने रूम बनाया, रूम बना करके जो है उसने चौका लगा दिया। तो रूम का मतलब होता है 2 खिलाड़ियों के बीच में खाली जगह ढूंढना। तो आज की डेट में अगर खाली जगह कहीं पे सबसे ज्यादा है तो वो है हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट की। अगर कोई आदमी ये कहने लगे कि यार मैं तो सब कुछ सीख गया, मुझे सब आता है, तो ही इज रॉन्ग, ही इज शेयर रॉन्ग। क्योंकि मैंने फिर बोला कि द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा खाली जगह है तो वो अंतरिक्ष भी नहीं है, वो इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की सबसे ज्यादा स्कोप है। Am I right? Right. Right. The biggest right? room in this world is room for improvement. हाँ, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड बोलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड माने दुनिया। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी खाली जगह कोई है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए है, इंसान improvement के लिए। आज इस दुनिया में 1-1 इंच जमीन, 1-1 इंच आसमान इंसान के कब्जे में है, ठीक है।
आप कोई भी जमीन का टुकड़ा देखिए, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा पानी और पिला दीजिए। कोई भी जमीन का टुकड़ा देखिए, किसी भी इंसान से अगर पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये जमीन मेरी है, मेरे पास इसकी रजिस्ट्री है। हम्म, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई और स्पीसीज जो है, कई लाख स्पीसीज हैं, करोड़ों स्पीसीज हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी के पास किसी भूमि के कागज मिल जाएंगे आपको, कोई ओनरशिप मिल जाएगी? इंसान नहीं कहता आई एम द ओनर ऑफ द अर्थ। इंसान तो इतना मतलब घमंडी हो गया, वो कहता है कि मेरे मेरे खेत में नीलगाय घुस गई। तो क्या नीलगाय को भगवान ने नहीं बनाया? उसका अधिकार नहीं है कहीं जाने का? यस, और फिर करंट लगा देगा, तार लगा देगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान को ये पता चल गया है कि द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या पता चल गया इंसान को? द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ भैया, लर्निंग का अर्निंग से डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग, जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग। उतनी अर्निंग। लर्निंग इंक्रीज योर लर्निंग, प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। ठीक है, नो लर्निंग नो अर्निंग, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। मोर अर्निंग। इसको बोल के दिखा दो, टंग ट्विस्टर की भी तरह है। नो लर्निंग नो अर्निंग, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। मोर अर्निंग। बोल के बताओ। नो लर्निंग नो अर्निंग, मोर अर्निंग मोर लर्निंग। नहीं, मोर नहीं, मोर लर्निंग। हाँ, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। यस, टंग ट्विस्टर नहीं बन गए? यस। है ना, हम बैठे बैठाए कुछ ना कुछ बना देते हैं यार, क्योंकि हम टीचर हैं। तो चलिए एक बार फिर से बोलेंगे। कौन? प्रत्युषा आप बोलिए। लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। Learning is directly proportional to earning. पूरा बोलो। नो लर्निंग नो अर्निंग, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। No learning, no earning. More learning, more earning. And how can anybody be confident? What is the formula of confidence? Being confident. Knowledge plus implement is equals to confidence. Implementation. Implementation plus knowledge is confidence. पहले नॉलेज आएगी, पहले इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आ जाएगा? सबसे पहले नॉलेज होगी, नॉलेज को फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे। Knowledge plus implementation, confidence. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी का आप बताओ कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग, वो डेफिनेशन। आर यू देयर? इसी का आर यू देयर? इफ यू आर देयर देन इट्स योर टर्न। I think her mic is not working. चलो कोई बात नहीं। तो अब हम बात कर रहे थे कि आइस ब्रेकिंग एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किसी स्ट्रेंजर से आप बात करते हैं तो कैसे हैं। अब बात करते हैं कि किसी जानने वाले से अगर हम मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो नॉर्मली तो बोलते हैं कि अपना नाम बताते हैं, नाम बताने के साथ सामने वाला नाम बताता है, क्योंकि कर्टसी में आता है। अच्छा, कर्टसी क्या होती है? व्हाट इज कर्टसी? कर्टसी इज ऑल अबाउट, हिंदी में कहते हैं तहजीब। स्पेल आउट सर। कर्टसी, भाई स्पेलिंग मेरी बहुत खराब है ना? यू नीड टू चेक इट आउट। हाँ, आई एम अ स्पोकन टीचर नॉट। कर्टसी आप देख लेना, है ना? हाँ हाँ, अब देखो, आई एडमिट इट यार, है ना? जो है वो है। कल आपने एक प्रोवर्ब पूछी थी, क्या थी वो? जरा बताना एक बार। मैं खुद भूल गया। हाथ कंगन को आरसी, नहीं नहीं, राइट। प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ ऐसे था। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण करके
नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। है। तो वो है व्हाट इज एविडेंट नीड्स नो प्रूफ। हाँ, राइट। व्हाट इज एविडेंट नीड्स नो प्रूफ। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात कर रहा था कि जब हम किसी नॉर्मल व्यक्ति से मतलब हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत हम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार हम स्ट्रेंजर से ही मिले, ठीक है। तो हम वहाँ शुरुआत में हम लोग आज की डेट में बड़ा बहुत ही ज्यादा वो चल रहा है, बोलते हैं आजकल हे व्हाट्सअप, है ना। तो ये भी एक स्लैंग है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब फेड में है, FED, फेड का मतलब प्रचलन। हाँ, मैं बोलता हूँ इट इज इन फैशन, तो फैशन ना बोल के हम बोलते हैं फेड, FED। फेड, ओके। और फेड इज हिंदी वर्ड इज प्रचलन, इट्स इन फेड, ठीक है। कम अगेन, तो जरूरी नहीं है FED, फेड, इट्स इन फेड, इट्स इन फेड, ओके। yeah, it's in Fed. So normally we say hey what's up, ठीक है, या how are you doing, और सब कैसे चल रहा है, तो बोलेंगे hey how are you doing, ठीक है। Hey, how are you doing? या एक चीज और क्या कर रहे थे भाई, है ना, और क्या हो रहा है, what are you up to, what are you up to, hey what are you up to, Hey, what are you up to? हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, और क्या चल रहा है। आजकल बड़ा बोलते ना, अरे और क्या चल रहा है भाई, हे व्हाट आर यू अप टू, लिख लो भाई ये सारे सेंटेंसेस ना। I think you people are having a pen and notebook with you, है ना। What are you up to? हाँ, और क्या चल रहा है भाई, what are you up to, ठीक है। या how are you doing, and somewhere I have listened some people ask what's how's life, so it's a बिल्कुल good सही, matter. नहीं बिल्कुल सही है, हाउस लाइफ भी कह सकते हैं, मैं उस पे भी आ रहा हूँ अभी, हाउस लाइफ पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है हाउस लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब काफी डिटेल में हाउस लाइफ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो चलो मैं बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, देखो इसका काफी लंबा सेशन है, चलो इसी को शुरू कर देते हैं जब आपने स्टार्ट कर दिया। हेलो हेलो, तो एक सवाल है, जैसे कुलदीप ने पूछा कि वेरी गुड सजेशन, मेरी क्लास बना दी तुमने कुलदीप आज की, ये बोल के कि हाउस लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कशन करने के लिए। तो एक तरीका ये भी है, जैसे कुलदीप ने पूछा हे हाउस लाइफ, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स फाइन, क्या बोलते हैं, It's fine, it's getting along इट्स fine, फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, तो वंडरफुल। अच्छा, फाइन वर्ड हम बार बार बोलते हैं। हाँ, सुनो 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 सुनो, मैं दो तीन चीजें बता रहा हूँ आपको, कि कई बार क्या होता है कि लाइफ फाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइन कह रहे हैं। भाई घर से पिट के आए, देन वी आर सेइंग फाइन। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये तो क्रैमिंग हो गई। क्या हो गई, क्या हो गई, क्रैम माने होता है रट्टा, CRAM, क्रैम मीन्स CRAM, क्रैम, रटना। हाँ, क्रैम इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, जो हम लोग किया करते थे, बेसिकली मैं करता था, है ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था पहले क्या होता। तो क्रैमिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, Cramming. हाँ, क्रैमिंग बोलते हैं। अगर हमने बोला रट्टा मत मारो यार, डोंट क्रैम, अंडरस्टैंड इट, रटो मत, समझो इसको, डोंट क्रैम, अंडरस्टैंड इट, बिकॉज Don't cram, understand it. अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू फ्रूट,
cramming cannot give you the desirable fruit which you are desiring for, ठीक है? Expecting. तो हाँ, which you are expecting, which you are desiring, which you are craving for. Crave का मतलब Yeah, होता है craving for. हाँ, लालच. लालसा, है ना? हाँ हाँ, तो क्रेव, खाने की भी क्रेविंग होती है कि कुछ खा लो यार, कुछ खा लो, उसको भी क्रेविंग कहते हैं, है ना? तो जो मेरे को बड़ी खाने की क्रेविंग होती है जब हम घर पे रहते हैं ना, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारी तो छुट्टी होती है, लेकिन घर वालियों का काम बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बार बार क्रेविंग्स होती रहती है, भाई ये बना लो, भाई ये बना लो, भाई ये बना लो, ठीक है? मेरा उल्टा होता है. अच्छा, तेरा उल्टा है, तो इट साउंड्स गुड यार, इट साउंड्स गुड. मैं मेरे साथ यही परेशानी है, मेरी क्रेविंग्स है. अच्छा, एक चीज और है, तो मेरी कहानी चल रही थी बीच में, तो जब हम कहते हैं कि जी ये बना लो, ये बना लो, वाइफ कहती है यार रहम करो हम पे, हम भी इंसान है, तो रहम करो, उसके लिए बोलते हैं गो इजी ऑन मी. Sorry? गो इजी ऑन मी. Go easy on me. Okay. हाँ, अब गो इजी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है भाई. देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी जानते तो नहीं है, लेकिन उसकी टांग तोड़ने से बाज भी नहीं आते, है ना? Go जैसे easy कि on me. हाँ, जैसे कि आज मतलब बहुत जगह होता है कि जी हमारे कल टीचर्स डे है, तो कुछ टीचर्स कह रहे भैया टीचरों को क्या करना है, टीचरों को क्या करना है. तो मैंने कहा भाई देखो, टीचरों को तो कुछ नहीं करना, टीचर्स को करना है. टीचर. है ना? मैंने कहा टीचरों को तो कुछ भी नहीं करना, बट टीचर्स को करना है, ठीक है? आजकल बड़ा प्रचलन है यार, ये साइड में है कि स्टूडेंटों से कहो लाइन बना लेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंटो? भाई तुम अंग्रेजी में भी हिंदी का जो है मोती रोप दे रहे हो, है ना? जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार फल फ्रूट ले लो, Boy जो. बॉय जो, गर्ल जो, भाई ये क्या है यार ये? तो ये स्लैंग्स हैं, हम लोगों ने डेवलप कर लिए ना. तो जब कोई ऐसा बोले तो आप तुरंत बोल दो यार गो इजी ऑन इंग्लिश, भाई रहम करे यार अंग्रेजी पे यार, क्यों इसकी हत्या कर रहा है दिन दहाड़े ना? दिन दहाड़े इज कॉल्ड ब्रॉड डे लाइट. ब्रॉड डे लाइट. दिन दहाड़े इज ब्रॉड डे लाइट, ठीक है? तो मान लीजिए अंग्रेजी में ही कोई ऐसा प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि आपको कहना पड़ जाए यार अंग्रेजी पे रहम कर दो यार, क्यों दिन दहाड़े हत्या कर रहा है इसकी, तो क्या बोलेंगे आप जरा बताइए? मैं सारा बता चुका हूँ. Go easy on Go English. easy on English. अभी कॉल आ रहा है. What was the meaning of broad daylight? ब्रॉड डे लाइट है, ब्रॉड डे लाइट. Yes, broad daylight. हाँ, What was that meaning? दिन दिहाड़े, दिन दिहाड़े. Okay. Like he killed him broad daylight. उसने उसे दिन दिहाड़े मार दिया. कास्ट क्या है बेटा? Okay. जो भी है, जनरल ओबीसी एसटी जो भी आता है, ब्रॉड डे लाइट, ठीक है? Right. ब्रॉड डे लाइट स्टैंड्स फॉर दिन दिहाड़े. दिन दिहाड़े. हाँ, तो मैंने उसे दिन दिहाड़े चेतावनी दे दी. आई वार्नड हिम ब्रॉड डे लाइट. सब्जेक्ट्स भरो अपने. कॉमर्स में हो तुम, तो सारे पे टिक मारो ना. हिंदी नहीं है ना आपके पास? हिंदी के अलावा कुछ और होगा, ठीक है? तो मुझे वो वाली प्रोवर्ब बताइए फिर से भैया. बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है. The biggest room in this world is room for improvement. ठीक है.
द बिगेस्ट अच्छा, एक चीज और है। वर्ड। हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, एल जो है फाइनाइट हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है।